بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں اس شیعہ عورت کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا، ہر طرف سے رحمت ہی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ باضد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ابھی نہیں جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا انسان ہے، وہ اللہ کے گھر کیوں نہیں جاتا۔ میری سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا، جبکہ وہ مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا تھا، رمضان المبارک کے پورے 30 روزے رکھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ جانا کیوں نہیں چاہتا۔ کتنی مشکل سے ہمیں وہاں جانے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ لوگ تو وہاں جانے کے لیے ترس جایا کرتے ہیں، لیکن میرا شوہر اتنی بڑی خوش قسمتی کو سامنے سے ٹھکرا رہا تھا۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی ناکام رہتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو ہر طریقے سے سمجھا لیا تھا، انہیں ناراض ہو کر سمجھا لیا تھا، انہیں پیار سے سمجھایا تھا، لیکن وہ باضد تھے کہ وہ نہیں جانا چاہتے۔ وہ امام بارگاہ ہو کر آ چکے تھے، لیکن اب وہ خانہ کعبہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ مجھے ان کی یہ منطق بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ خدا کے لیے آپ خانہ کعبہ میرے ساتھ چلیں۔ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم وہاں چلے گئے تو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی، ہمیں وہ خوشی حاصل ہو جائے گی جو ہم اتنے سالوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا شوہر خاموش تماشائی کی طرح بس میرے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک الفاظ نہیں کہہ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور سب چھوڑ چھاڑ کر اکیلی چلی جاؤں، لیکن اخلاق بھی کسی شے کا نام ہوتا ہے۔ مجھے کسی بھی طریقے سے اپنے شوہر کو راضی کرنا تھا تاکہ وہ بھی میرے ساتھ آئے اور خانہ کعبہ کی زیارت کر سکے، کیونکہ اکیلے دعا مانگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں کو وہ خوشی چاہیے تھی، اور ایسے میں اگر میں اکیلی جاتی تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہوتے۔ میں اس وجہ سے ہی ان کو بار بار وہاں چلنے کے لیے بول رہی، لیکن وہ تھے کہ بس خاموش تماشائی کی طرح مجھے گورتے جا رہے تھے۔ میں بول بول کر اب خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے غصہ بھری نگاہ سے ان کے چہرے کو دیکھا اور ایک فیصلہ کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ آپ نے میرے لیے آج تک کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں جب بھی آپ سے کوئی فرمائش کرتی ہوں یا آپ سے کہیں جانے کے لیے بولتی ہوں تو آپ میری بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے سال سے اس خوشی کو ترس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہیں کہ ڈیڑھ بنے ہوئے بات کو مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ میری آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے میری اس بات کو کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ کچھ بولے بنا ہی کمرے سے اٹھ کر باہر جا چکے تھے، جبکہ میں غصہ بھری نگاہوں سے ان کی پشت کو گورتی رہ گئی تھی۔ میں بھی غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں گئی اور خاموشی سے پیکنگ کرنے لگی۔ میری 2 دن بعد فلائٹ تھی اور آخری وقت میں آ کر میرے شوہر وہاں جانے کے لیے رضامند نہیں تھے، اس لیے میں نے ساری چیزوں کو پست پشت ڈالا اور اکیلے ہی جانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ میرا دل بہت دکھ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کا انکار کرنا مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا اور وہ وقت بھی آ گیا تھا جب میرے خانہ کعبہ کی فلائٹ تھی۔ میں آخری وقت تک اپنے شوہر کو منائے جا رہی تھی کہ خدا کے واسطے چلو، ایک بار چلو، ہماری دل مراد وہی جا کر پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا شوہر بہت باضد تھا، وہ کسی صورت وہاں نہیں جائے گا۔ اگر وہ خواہش ہماری پوری ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے بھی ایک بار پھر ان کو بولا، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ساری چیزوں کو پست پشت ڈال کر اپنی خالہ کے ہمراہ ایران سے خانہ کعبہ کی جانب گامزن ہو چکی تھی۔ سارا وقت میرا دل بہت زیادہ پریشان رہا تھا۔ میری ساری سوچوں کا مرکز میرے شوہر ہی تھے۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ آخر میرے شوہر خانہ کعبہ کیوں نہیں جانا چاہتے۔ ہمارا جہاز سعودی عرب لینڈ کر چکا تھا۔ میں اپنی خالہ کے ہمراہ خانہ کعبہ کے راستے پر گامزن تھی۔ میری نگاہیں نیچی تھی اور میں خانہ کعبہ کے صحن میں چلتی جا رہی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اللہ کے گھر کو دیکھنے والی تھی۔ یہ احساس ہی مجھے نہ جانے کس جہان میں لے جا چکا تھا۔ میں جو جہاز میں پریشان سی تھی اپنے شوہر کو لے کر، اب ساری چیزیں کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں بس اس خوبصورت احساس میں ہی جکڑی ہوئی تھی جو مجھے ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں بالکل خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میری خالہ نے مجھے سامنے دیکھنے کے لیے بولا،
मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे धीरे से अपनी आंखें उठाकर जैसे ही सामने का मंजर देखा, मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मेरी आंखों से आंसू बेख्तियार होकर रवां होना शुरू हो गए थे। ये मंजर मेरे लिए किसी ख्वाब की ज़ेर असर था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं अभी आंख खोलूंगी और मेरा यह ख्वाब टूट जाएगा। मैं खाना काबा के सैन में खड़ी हुई थी, यानी मैं अल्लाह के घर के सामने थी। मेरे दिल यही सोचकर खुशनुमा अंदाज में धड़क रहा था। मैंने बारगाह इलाही में अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अपने दिली मुराद मांगने लगी, जो मेरी ख्वाहिश थी कि वो पूरी हो जाए। मैंने हाथ उठाए थे और अपने लबों से वो दुआ अदा की थी कि न जाने इतनी जोर से हवा कहाँ से चली कि मेरी चादर तक उड़ने लगी। मैं परेशान सी हो गई थी, लेकिन मैंने अपने होंठों को अभी तक बंद नहीं किया था। मैं ज़ेर लब अल्लाह ताला से वो दुआ मांग रही थी जो मैं कितने सालों से मांगती हुई आ रही थी। मैं अभी अपने चेहरे पर हाथ फेरती और इससे पहले मेरा सर इतनी जोर से घुमा कि मुझे सामने का मंजर धुंधलाने लगा। मैं बेख्तियार होकर जमीन बोस हो गई। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। अचानक ही मेरी खाला मेरे पास आई और मेरे कपड़े। मैं शिया मसलक से ताल्लुक रखती थी। मेरा ससुराल भी शिया मसलक से ही ताल्लुक रखता था। हम लोग ईरान के रिहायशी थे। पहले तो हम लोग पाकिस्तान में ही रहते थे, लेकिन कारोबारी वजूहात की वजह से हमारा पूरा ख़ानदान ही ईरान में मुंतकिल हो गया था। हम लोग हर हफ्ते इमाम बारगाह जाकर रोज़े इमाम हुसैन की ज़ियारत करते थे। वहाँ पर अपनी दिल की दुआएं मांगते थे, लेकिन मेरी एक दुआ जो मेरे दिल में बरसों से थी वो पूरी ही नहीं हो रही थी। बहुत से लोगों ने इस दुआ के लिए बहुत वज़ाह बताए थे, बहुत से टोटके बताए थे, लेकिन कुछ भी करामत साबित नहीं हो रहा था। मैंने इमाम हुसैन हसन के रोज़ा पर बहुत सी मन्नतें मांगी थी और इन मन्नतों को मैं पूरी भी करती थी, लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही थी। मेरे शौहर कट्टर शिया थे और वो हर काम देखभाल कर करते थे। हमने आज तक किसी भी चीज़ में कोताही नहीं की थी, लेकिन ऐसा होना मुझे बहुत उदास कर देता था। मैं एक रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने घर में ही बैठी हुई थी कि मेरी पड़ोस की औरत मेरे घर आई और मेरा हाल हवाल दरियावत करने लगी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं अपनी इस ख्वाहिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और वो मेरे हाथ पर अपना हाथ धरते हुए कहने लगी, नुशाबा क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो? इस औरत की आवाज़ में मेरे लिए फ़िक्र का अंसर था। मैं बेख्तियार होकर उस औरत की गले लग गई और बेतहाशा रोने लगी। वो धीरे धीरे मेरी कमर को तप रही थी और मुझे खामोश होने का बोल रही थी। मैं काफ़ी देर तक उसके सीने से लगी अपना दिल हल्का करती रही। जब मेरा दिल हल्का हो गया तो मैं उससे आराम से अलहदा हुई और इससे माजरत करने लगी। वो कहने लगी, कोई बात नहीं नुशाबा, हम लोग दोस्त थे और दोस्त तो एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। तुम अपना दुख मुझे बता सकती हो। मैंने उस औरत की जानिब भरी हुई आंखों से देखा और धीरे धीरे खुद के दिल के बोझ हल्का करने लगी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक औलाद जैसी नेमत नहीं आई है। मेरे शौहर मुझे कभी भी इस बात का ताना नहीं देते। वो हमेशा मुझे इस बात पर सपोर्ट करते हैं। कोई मुझे गलत अलकाबात से नवाजता भी नहीं। तब भी वो मेरे हक में बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरी भी औलाद हो। मेरे साथ जिन जिन लड़कियों की शादी हुई थी उन सब के 2-2, 3-3 बच्चे हैं, लेकिन मेरा एक भी बच्चा नहीं। मैंने हर वज़ाइफ, हर टोटका, हर मन्नत पूरी की है, लेकिन मेरे यहाँ औलाद हुई ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी हर मन्नत इमाम बारगाह में जाकर पूरी करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा भी औलाद हो जाए। वो मेरा दुख सुनने के बाद कहने लगी, नुशाबा तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने पैसे से, इतनी दौलत से नवाजा है, तो तुम क्यों नहीं एक बार खाने काबा की ज़ियारत के लिए चली जाती? वहाँ जाकर रो रो अल्लाह के सामने फरियाद करो, दुआ मांगो, इंशाल्लाह वो तुम्हारी दुआ कब ज़रूर सुनेगा। जबकि मैं इसकी ये बात सुनकर यकदम ही सकत सी हो गई थी। मैंने उससे पहले कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे एक बार खाना काबा जाना चाहिए। मैं एक पल के लिए अंदर ही शर्मिंदा सी हुई और खामोशी से सर झुका लिया। वो औरत एक बार फिर कहने लगी, देखो मैं जानती हूँ, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये बात ना आई हो और हो सकता है आई भी हो, लेकिन मेरी बात मानो और अपने शौहर के साथ एक बार उम्र के लिए चली जाओ। वहां जाकर अल्लाह के घर के सामने दुआ मांगो,
इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और कहते हैं ना खाना काबा को जो पहली नज़र देख के दुआ मांगी जाती है वो हर हाल में कबूल होती है। जबकि अपनी पड़ोस की औरत की ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मैंने बैठे बैठे ही तय कर लिया था कि मैं अपने शौहर के साथ एक बार ज़रूर खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाऊं। मैंने इस औरत का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरे दिमाग में ये बात डाली और इसके आओ बकत करके उसे उसके घर पहुंचा दिया। मैं अब बेचैनी के साथ रात में अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मेरे शौहर घर आए मैं उन्हें खाना वगैरह देने के बाद उनके पास बैठ गई और उस बारे में बात करने लगी। मैं कुछ सोच रही हूँ, हमें एक बार अल्लाह के घर पर हाजिरी ज़रूर लगानी चाहिए। हो सकता है हमारे जाने से हमारे दिल की मुराद भी पूरी हो जाए। मेरे शौहर ने जब ये बात सुनी तो उनका चेहरा लट्टे की माने सफ़ेद पड़ गया। उन्हें तो ऐसा महसूस होता था जैसे ये बात सुनकर सांप सूंघ गया हो। मैं उनकी ये कंडीशन देखकर हैरान हुई, लेकिन अपनी हैरानगी को एक तरफ रख दिया और एक बार फिर उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगी, देखो इमरान, हम लोग एक बार अगर खाना काबा चले जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये दुआ ज़रूर पूरी होगी और अल्लाह ताला हमें एक औलाद से नवाज देगा। लेकिन मेरा शौहर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो बस सामने की दीवार को घूरे जा रहा था। इसका रद्द अमल मुझे परेशान कर रहा था। मैं एक बार फिर अपनी बात पर जोर देती हुई कहने लगी तो उससे पहले ही उसने मुझे खामोश करवा दिया और कहने लगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे बहुत से काम है, अभी मैं मसरूफ़ हूँ। ये बात सुनकर मैं झट से बोली, तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम रुक जाते हैं, लेकिन अगले महीने तक हम लोग चलते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज दिया है तो हमें चाहिए कि एक बार हम खाना काबा की ज़ियारत ज़रूर करके आएँ। मेरा पुख्ता इरादा देखकर मेरे शौहर ने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगे, नुशाबा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, फ़िलहाल के लिए मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो ये बोलकर आधा खाना छोड़कर ही अपनी जगह से उठ गए थे, जबकि मैं इनके इस रवैये पर बिल्कुल हैरान और परेशान सी थी कि ये बात सुनकर इन्हें अचानक से क्या हुआ है। अब मैं हर रोज़ ही इनसे इस बारे में बात करने लगी, लेकिन वो हर बार की तरह इस बात को टाले जा रहे थे। मेरा दिल हौले हौले डर रहा था, न जाने क्यों मेरे शौहर इस तरीके से इनकार कर रहे थे। वैसे तो वो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते थे, हर चीज़ पर पूरे उतरते थे, लेकिन अचानक से उनका ये रद्द अमल मुझे परेशान कर गया था। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहे थे और मैंने अंदर ही अंदर अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट बनवाना शुरू कर दिया था और साथ में अपने शौहर के भी। आखिरी रोज़ तक मैं अपने शौहर के आगे गिड़गिड़ा रही थी, इन्हें मनाती रही थी, लेकिन वो नहीं माने थे और आखिर में मुझे मजबूरन अपनी खाला के हमराह खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाना पड़ा था। जाते वक्त भी मेरा दिल बहुत परेशान था। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये वसवसे, ये ख्यालात कहीं खो से गए थे। खाना काबा की सियान में जाने के बाद तो ऐसा महसूस होता था जैसे मैं बहुत हल्की फुल्की सी हूँ। और जैसे ही मैंने अल्लाह के सामने खड़ी होकर ये दुआ मांगी कि या रब, मुझे औलाद की नेमत से नवाज, तूने हर एक को औलाद दी है, मुझे भी एक साले औलाद से नवाज दे। इस दौरानिया में ही अचानक इतनी ज़ोर से हवा चली कि मैं खुद परेशान हो गई। मेरी चादर तक उड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लब रुके नहीं थे। अचानक ही मुझे इतनी ख़तरनाक तरीके से चक्कर आए कि मैं बेसाख्ता ज़मीन बोस हो गई। मेरी खाला फ़ौरन अपने करीब आई और मुझे अस्पताल लेकर भागी। वहाँ का अमला ने जो बात मेरी खाला को बताई वो इनके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। और जब ये बात मुझे मालूम हुई, मुझे तो ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे कदमों में ज़मीन ही ना हो, मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मेरी आँख जब खुली तो मैं अस्पताल के कमरे में ही मौजूद थी। मेरे साथ मेरी खाला खुशी और दुख के तासरात लेकर मेरे बराबर में ही खड़ी हुई थी। मैंने अपनी खाला की जानिब देखा और उनका हाथ थामे हुए कहने लगी, हम लोग यहाँ क्यों आ गए हैं, मुझे क्या हुआ है। वो मेरे माथे पर अचानक ही झुक गई और एक बोसा सबत कर कहने लगी, नौशाबा बेटी, जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम्हारी वो दुआ कबूल हो चुकी है। जबकि बेसाख्ता मेरे माथे पर शगनों के जाल बिछे थे, मैं हैरत के समंदर में गोतज़न हो गई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल गई है। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा कहती है तुम्हें तो 4 महीने का हमल ठहरा हुआ है, तुम माँ बनने वाली हो। जबकि मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है।
मैं बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी और अपनी खाला की जानब देखती हुई कहने लगी, खाला मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जानती हैं मैं इस चीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा इमोशनल हूँ। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने फौरन ही मेरे चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामा और कहने लगी, यकीन मानो नुशाबा, डॉक्टर का यही कहना है कि तुम 4 माह हामला हो। जबकि ये बात सुनने की देर थी कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन ही ना हो। मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू रवा होना शुरू हो गए थे। मैं बेसाख्ता अपनी जगहों से उठी और अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज हो गई और पाक परवरदिगार की बारगाह में गिर कर रो रो कर उनकी शुक्र अदा करने लगी। मेरी पड़ोसी की बात दुरुस्त साबित हुई थी। मेरे यहाँ आने की देर थी और अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या मौजज़ा पेश आ गया है। मैंने फौरन ही अपने शोहर को फ़ोन लगाया और इन्हें सारी रोदात से आगाह करने लगी। उनका हाल मुझसे मुख्तलिफ नहीं था। वो तो ये बात सुनती ही ज़ारो कतार आवाज़ से रो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी ही सऊदी अरब के लिए निकल रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये बात सुनकर मेरे हाथों से फ़ोन छूट गया था और मैं एक बार फिर सजदे में गिरकर अल्लाह के बेतहाशा शुक्र अदा करने लगी। मेरे मालिक ने मुझे एक ऐसी खुशी से नवाज दिया था जिसका मैं चाह कर भी एहसान नहीं उतार सकती थी। मेरे शौहर रात की ही फ्लाइट से मेरे पास आ गए थे। मैं अपनी खाला के हमरा होटल वापस जा चुकी थी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैं जल्द ही दवाइयों के ज़ेर असर नींद की वादियों में खो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे शौहर मेरे बराबर में ही बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने उन्हें देखा तो बेसाख्ता उठ के उनके सीने से लग गई और हम दोनों मियाँ बीवी बाकायदा आवाज़ से रोने लगे। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा आबदीदा हो रहे थे। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता वो औलाद के लिए किस कदर पागल थे। उन्होंने मुझे धीरे से खुद से अलहदा किया और कहने लगे, तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई, तुम खाना काबा आई और हमारे दिल की मुराद पूरी हो गई। मैं बिल्कुल पागल था जो यहाँ आने के लिए बाज़िद था। मैंने इसी वक्त अपने शौहर का हाथ माथा और अपना सर रखते हुए कहने लगी, आपको मेरी कसम है, आप मुझे सच सच बताएं, आखिर आप यहाँ क्यों नहीं आना चाहते थे। मैंने आपको कितना कहा था, लेकिन आप बाज़िद थे कि आप खाना काबा नहीं आएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आप यहाँ नहीं आना चाहते थे। खुदारा मुझे बताएं। मेरे शौहर की आंखें झुक चुकी थी। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे थे और मुझे ये बात ही परेशान कर रही थी। वो कहने लगे, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के हर अहकामात की पैरवी करता हूँ। मैं हर वो काम करता हूँ जो एक सच्चा मुसलमान करता है, लेकिन मैं अंदर से मुनाफिक हूँ। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो चुके थे। मैंने हैरान निगाहों से अपने शौहर की जानिब देखा। वो मजीद कहने लगे, मैं ईरान में कोटों पे जाया करता था और अपनी रात रंगीन करता था। मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात सुनकर बहुत दुख पहुँचेगा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मुझे इस काम की लत लग चुकी थी। मैं शराब नोशी करता था। इन्हीं वजूहात की वजह से मेरा दिल खाना काबा की जानिब नहीं उठ रहा था। जब तुमने मुझसे ये बात कही तो मैं यकदम सख्त हो गया था। पहली बार मुझे किसी ने अल्लाह ताला की रूबरू खड़ा करने की बात की थी। मेरा दिल सहम सा गया था, क्योंकि अगर मैं अल्लाह के सामने खड़ा होता तो मुझे पाक साफ होना था, लेकिन मैं पाक साफ नहीं था। मैंने वो काम किया था जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। मैंने एक जना किया था और दूसरा शराब नोशी की थी जो मेरे मज़हब में हराम है, तो मैं कैसे अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता। एक यही वजह थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आने से कतरा रहा था। मैं खामोशी से इमाम बारगाह तो चला जाता। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन के रोज़ा मुबारक पर जाकर औलाद के लिए मन्नत उठा लेता था। वहाँ जाकर दुआ मांग लेता था, लेकिन मैं यहाँ आने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं हर वो बुरा काम छोड़ दूंगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए थे। मैं एक ऐसा मुसलमान बन जाऊँगा जैसे अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को चाहते हैं। मैं शिया मसलक भी छोड़ दूंगा, हम पक्के मुसलमान बनेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच लिया है। नुशाबा, हम दोनों मियाँ बीवी अब सऊदी अरब में ही रहेंगे। मैं अपना तमाम तर कारोबार सऊदी अरब में ही मुंतकिल कर लूँगा। अब मैं वापस कभी भी ईरान नहीं जाऊँगा, जहाँ जाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी।
जबकि मेरे शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था, जिसको मैं समझती थी कि वो मेरे अलावा कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे तक ही महदूद रहते हैं। लेकिन ये सब मेरी खाम ख्याली निकली, क्योंकि वो तो जना करते थे, शराब नोशी करते थे और इस बारे में मुझे इल्म तक नहीं हुआ था। मैं कितनी बेखबर थी। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था, मेरी आंखों से आंसू बेअख्तियार रवां होना शुरू हो गए थे। मैं जो अपने शौहर के सीने से लगी हुई थी, अब उनसे दूर हटकर बैठ गई थी। वो एकदम ही मेरे पास हो गया और मुझे एक बार फिर सीने से लगाते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे। लेकिन मेरा दिल अब बिल्कुल भी उनकी जानिब माइल नहीं हो रहा था। मैं उनसे मुंह मोड़कर लेट चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था। मेरे शौहर ने अपना सारा कारोबार सऊदी अरब में ही मुंतकिल कर दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरे शौहर ने मुझे राज़ी कर ही लिया था। मैंने और मेरे शौहर ने 7 उम्रे अदा किए थे और अब हमारा इरादा हज करने का था। अल्लाह ताला ने हमें 5 महीने बाद एक चांद जैसे बेटे से नवाजा था। मैंने और मेरे शौहर ने मेरे बेटे के पैदा होने के चंद महीने बाद हज अदा किया था। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल सी गई थी। मैंने और मेरे शौहर ने शिया मसलब की पैरवी करना छोड़ दी थी। हम दोनों सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन रखते थे और किसी बात पर हमारा कोई अमल दखल अब मौजूद नहीं था। मेरी ज़िंदगी का ये मौजा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाती। डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे चुके थे और इसके बाद मेरे यहाँ औलाद होना ये अल्लाह ताला का मौजा था। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।